हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईयूपीएसी नेम कुछ ऐसे एलिफेटिक कंपाउंड्स के और उनके साथ प्रीफिक्स और सफिक्स क्या जुड़ रहा है, कैसे उनके नाम को रखा जाता है। हमने अभी तक सारे स्टेप्स पढ़ लिए, अलग अलग तरीके से पढ़ लिया, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप में एग्जाम्पल्स के साथ हमने देखा। अब मैं चाहता हूं कि हम एक समराइज्ड करें जिससे हमें पता चले अगर ऐसा कंपाउंड आता है तो उसे कैसे नाम देंगे। ठीक है, इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के आया हूं। जैसे पहला मैं ड्रॉ कर रहा हूं और आप बताएंगे कि ये क्या है। बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं कि क्या हम सही तरीके से समझ रहे हैं। अब इस कंपाउंड को देखिए, ये कंपाउंड क्या शो कर रहा है। सबसे पहली चीज, नंबर ऑफ कार्बन चेन प्रेजेंट 1 2 3 कार्बन, और 3 कार्बन पे क्या नाम रखते थे हम, क्या कहते थे उसको कहते थे प्रॉप। ठीक है, अब प्रीफिक्स और सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इसमें कोई दिख रहा है नहीं, इसके अंदर क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है। और कहां पर है मल्टीपल बॉन्ड, कौन सा है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब ईन। तो क्या है ईन, बेसिकली ईन जो हो गया आपका एल्कीन पार्ट है, और ये क्या होगा, सफिक्स होगा। क्या ये पहले लगता है, नहीं, ये बाद में लगता है। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा कि प्रॉप 1 ईन है। अब कहां पर है, अगर काउंटिंग शुरू करें यहां से 1 2 3, तो इट्स एट फर्स्ट पोजीशन, सो इट इज prop 1 in. Friends, we are discussing today about some few aliphatic compounds IUPAC name by which we can understand what are the ways to calculate the IUPAC name or how we can observe the IUPAC name of a particular compound. I take this as an example where 3 carbons are there and a single bond, double bond present at first carbon. So the complete equation, the organic compound is C3 1 2 3 4 5 6 C3H6, and as the name suggests, it is a unsaturated hydrocarbon. Now the first column is name of carbon chain. How many carbons are there, 1 2 3 carbons, so the name is, word root is prop. Now prefix or suffix, is there any prefix added, no. Suffix, yes, 1, and it is of multiple bond, it's of ene group, so the suffix is ene, and the IUPAC name for this is depending on the double bond present in which carbon. So we start from here 1 2 3, the first 2 carbons having a double bond structure, so the name will be prop 1 ene. Now if I take another example like prop ine C3H4 1 2 3, and if I take a triple bond at this same position, if I calculate the number of hydrogen, this is the structure which shows C3H4. Now you have to calculate the name of IUPAC name of this structure. Here 3 carbons are there, so the word root will be same, prop. And what about prefix or suffix, no prefix is there, one suffix, and suffix is triple bond. Triple bond stands for ine, so the name will be prop with carbon position or triple bond position at 1, so prop 1 ine. This is the complete structure or IUPAC name for these 2 compounds. यहाँ बात करें दोस्तों, इस स्ट्रक्चर में देखें, यहाँ एक ट्रिपल बॉन्ड है और टोटल क्या है, कार्बन की जो कितने कार्बन है, 3 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, तो C3H4 फॉर्मूला हो गया। इसका वर्ड रूट क्या होगा, 3 कार्बन की वजह से प्रॉप, और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से सफिक्स हो जाएगा ईन। अब इसका टोटल नाम क्या होगा, प्रॉप 1, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, जहां से स्टार्ट होता है वहीं से लेते हैं, तो 1 ईन, प्रॉप 1 ईन। अब अगला देखें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हम करते हैं इसको। अभी तक हम सिर्फ बॉन्ड्स देख रहे थे, हम फंक्शनल ग्रुप देखेंगे कि कैसे फंक्शनल ग्रुप वैरी करता है, कैसे फंक्शनल ग्रुप के नाम रखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल
the same 3 carbon single bond structure, or we can say saturated carbon. I'll put Br. Now this will shows what is the word root of this. 3 carbons are there, prop, and what will be the suffix? What will be the prefix or suffix? There is one halogen group element is added, which is bromine. So the prefix is bromo. Prefix. And is there any suffix? No. It is a single bond structure, so we call it propane. Propane. Now if you calculate the IUPAC name of this, it is called bromopropane, because it is already added at the end. So it is at which position we can start counting here, 1, 2, 3. So at first carbon bromo is there, so 1 bromo propane, this is the name. दोस्तों हम बात कर रहे हैं थर्ड कंपाउंड की. अब इस कंपाउंड को देखिए, इसके अंदर क्या है, C3H7Br. क्या नाम होगा इसका? C3H7Br. एक ब्रोमो जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, जो हेलोजन ग्रुप का है. हेलोजन ग्रुप मतलब प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स मतलब ये नाम के पहले आएगा. अब यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये क्या है, ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर है. तो नेम ऑफ कार्बन चेन इट्स प्रोपेन. अब ब्रोमो है ब्रोमीन की वजह से, और ब्रोमीन कहाँ जुड़ा है, फर्स्ट कार्बन पे, तो नोमेनक्लेचर क्या होगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन. ये हो गया आपका. इसके बाद आप देखिए, अगर मैं इसी ब्रोमो की जगह पर आइडो लगा दूं या आयोडीन लगा दूं, अगर इसी ब्रोमीन को हम इस हाइड्रोजन को ना रिप्लेस करके अगर यहाँ पर एक आयोडीन लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन का स्ट्रक्चर वही रहेगा और प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, आइडो, और ये क्या है, प्रीफिक्स है. तो नाम में क्या चेंज आएगा. अब देखिए, आयोडीन कहाँ जुड़ा हुआ है, फर्स्ट कार्बन पे नहीं, थर्ड कार्बन पे नहीं, कहाँ जुड़ा है, सेकंड कार्बन पे. तो सेकंड कार्बन पे है, तो सेकंड 2 आइडो propane. Is it clear to you? Here the iodine is attached in second carbon, so we stated the name of prefix by its position of second. So it is 2-iodopropane, C3H7I. This is the formula. Hope you all get this, and I'll try my best to explain with other examples in continuation of these videos. Thank you for watching this.